بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بگ سکسیس سمال اچیومنٹس کا مجموعہ ہوتی ہے۔ سمال اچیومنٹس کو ڈیلی امپرومنٹس کی وجہ سے اچیو کیا جاتا ہے۔ اب ڈیلی روٹین کو لے کر کے ہم لوگ دو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں، یا تو ہم ڈیلی امپروورز بنتے ہیں یا پھر ٹائم ویسٹر۔ جب ٹائم ویسٹر بنتے ہیں تو اپنا دن جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ضائع کرتے ہیں۔ ارریلیونٹ ویڈیوز جو بھی پوسٹ ہوتی ہے، پھر جو نوٹیفیکیشن آیا فوراً سے کلک، پھر جو ہے وہ نان پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز کے اوپر ہم اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، ارریلیونٹ جو چیزیں ہیں ان کے اوپر۔ اگر دوسری کیٹیگری ڈیلی امپروورز بنتے ہیں ٹائم ویسٹر کے مقابلے میں، ڈیلی امپروورز، تو پھر اپنا جو ٹائم ہے، انرجی ہے، مائنڈ کیپابلٹیز ہیں، ان کو پھر جو ریلیونٹ فیلڈ ہے یا ہماری جو یونیک ایبیلٹی ہوتی ہے، جس کو فائنڈ کر کے ہم نے پوری زندگی اس کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے، اس کے اوپر ٹائم لگاتے ہیں اور اپنی جو روٹین ہے اس کو سمپلیفائی کرتے ہیں، نہ کہ پیچیدہ۔ اب سمپلیفائی ایسے کرتے ہیں کہ ہم اپنی روٹین میں زیادہ سے زیادہ تین پرائیورٹیز ہیں ان کو ایک دن میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کہ ایک ہی دن میں کوئی 10-12 کام ہم نے ڈیسائیڈ کیا یہ کرنے ہیں، رات کو پتہ چلا کہ ایک بھی نہیں ہوا۔ اس لیے جب ڈیلی امپروورز بنتے ہیں تو پھر اپنی روٹین کو 3 پرائیورٹیز تک محدود کرنا پڑے گا، اپنی زندگی کو سمپلیفائی کرنا پڑے گا، نہ کہ بلا وجہ پیچیدگیوں میں پڑے رہیں۔ اب یہ ہے کہ یہ جو ہم نے 3 پرائیورٹیز کے اوپر کام کرنا ہے تو وہ کس فیلڈ کی ہوں گی، وہ کس ڈائریکشن میں کرنا ہے۔ تو اس کے لیے یہ جو چارٹ ہے، یہ جو ایک ٹول ہے، یونیک ایبیلٹی ٹول ہے، اس کے ذریعے ہم فائنڈ کر سکتے ہیں کہ ہماری جو انر پرسنالٹی ہے یا جو ایک نیچرل ٹیلنٹ ہے، یونیک ایبیلٹی ہے، جس کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے اور آگے بڑھنا چاہیے، تو وہ اس طرح سے ہم جو ہے وہ اس کو فائنڈ کر سکتے ہیں۔ یہ جو 4 خانے نظر آ رہے ہیں، اس میں ڈیئر فرینڈز جو پہلا ہے، اس میں وہ کام ہیں جن کو ہم بڑے پیشنیٹ وے سے کرتے ہیں اور وہ ہم ایک ایکسپرٹیز کی حد تک لے جاتے ہیں۔ دوسری کیٹیگری ہے وہ جن کو ہم تھوڑا لائک کرتے ہیں، ان میں ایکسیلنٹ تو نہیں ہے لیکن گڈ ہیں، گزارا ہو جاتا ہے۔ پھر تیسری کیٹیگری ہے جن کو لائک تو نہیں کرتے لیکن کرنا پڑے تو ہم کر لیتے ہیں، یہ جو ہے۔ پھر چوتھی کیٹیگری ہے جن کو لائک بھی نہیں کرتے اور ان کے کرنے میں ہمارے پاس کوئی خاص سکل بھی نہیں ہوتی۔ تو اس کو اب اگر ایک ایگزامپل کے تھرو دیکھیں، یہ جو چوتھی کیٹیگری ہے، اس کو میں نے ایک پرائیویٹ کمپنی میں تھوڑے دن کام کرنے کا موقع ملا، تو وہاں ڈیٹا انٹری یا سمجھ لیں کاپی پیسٹ ٹائپ کا ایک کام تھا، یعنی کہ ایک طرف سے کاپی دوسری طرف پیسٹ، کاپی پیسٹ کاپی پیسٹ۔ تو یہ چیز کرنے میں کوئی سیٹسفیکشن نہیں مل رہی تھی، ایک انگزائٹی سی، ایک ڈس سیٹسفیکشن۔ رات کو جب فارغ ہونا ادھر سے تو لگتا ہے ایسے تک کچھ نہیں کیا۔ تو یہ جو کاپی پیسٹ ہے، اس کو میں سمجھتا ہوں اپنے اکارڈنگلی یہ چوتھی میری کیٹیگری ہے، اس کو میں لائک نہیں کرتا۔ اگر یہ جو تیسری کیٹیگری ہے، اس میں اگر کوئی اگزامپل دینی ہو تو جیسے میں کھیتی باڑی ہے، اس کو میں زیادہ کرنا لائک تو نہیں کرتا، تو لیکن اگر کرنی پڑ جائے تو کر لیتے ہیں۔ پھر ایک کیٹیگری یہ ہے، یہ جو دوسری کیٹیگری ہے، اس میں مثلا جی اپنے مثال دی جائے تو اس میں ٹیچنگ ہے۔ میں جب بی کام میں تھا تو میں سمن آباد میں اور ڈی ٹائپ میں ہوم ٹیوشن کے لیے جاتا تھا،
जब मैं आई कॉम में था तो आई कॉम वाले स्टूडेंटों को जो है वो अकाउंटिंग या फिर जो टेंसेस वगैरह थे वो करवा लेता था। ऐसे ही बी कॉम में इकोनॉमिक्स अकाउंटिंग ये उनको करवा लेता था, यानी कि टीचिंग। डियर फ्रेंड्स, ये जो दूसरी कैटेगरी है टीचिंग, इसमें ये थोड़ा मैं लाइक भी करता हूँ, फिर थोड़ा गुड भी, ज़्यादा एक्सीलेंट तो नहीं लेकिन गुड। फिर अगर यूनिक एबिलिटी की बात की जाए, जो कि आप लोग भी चाहते हैं कि आपको भी पता चले कि आपके अंदर क्या वो नेचुरल टैलेंट है, वो इनर स्ट्रेंथ क्या है जो आप जिसको तलाश करना चाहते हैं, तो इसमें मैं समझता हूँ कि अगर अपने आप को देखूँ तो ये ट्रेनिंग है, पर्सनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग। वो समझता हूँ कि वो मेरी यूनिक एबिलिटी है, उसी में मैं आगे जाना चाहता हूँ। क्योंकि जब ट्रेनिंग फील्ड की बात होती है तो एक पैशनेट वे से जो है वो काम कर सकते हैं। फिर जब यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में एमबीए कर रहा था तो वहाँ भी ज़्यादातर जो है वो मेन लाइब्रेरी में जो कंप्यूटर लैब है वहाँ जो ट्रेनर थे उनको मैं सुनता रहता था, या फिर जो है वो उनकी बुक्स, फिर जो है आर्टिकल्स ब्लॉग वगैरह पढ़ता था। हालांकि मेरे जो साथी थे वो मुझे कहते थे कि जो सब्जेक्ट है इसके ऊपर ज़्यादा आप रिसर्च किया करें, जो एमबीए के रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, लेकिन मैं ट्रेनिंग से रिलेटेड उधर लगा रहता था। तो इस तरह से ये है कि ये मुझे लगता है कि मेरी जो यूनिक एबिलिटी है वो ट्रेनिंग है। ऐसे ही आप लोग भी फाइंड कर सकते हैं, 2-3 दिन लगाएं, बाकी काम छोड़ दें। 2-3 दिन लगाएं कि आप किस तरह के काम करने में पैशन महसूस करते हैं, जिनके करने से आपको एक वो है जो आनंद वो आता है, फिर आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है। आप जैसे जैसे वक्त लगाते हैं आपको थकावट का एहसास नहीं होता, वो होती है यूनिक एबिलिटी। अब अगर हम चौथी कैटेगरी में रहकर कुछ काम करना चाहेंगे तो फिर यहाँ तो थकावट महसूस होगी, हम खुद ही अनहैप्पी होंगे, तो इसमें हम क्या दूसरों को डिलीवर कर सकेंगे। ऐसे फिर तीसरी कैटेगरी है, ये जो नीचे वाली दो कैटेगरियाँ तीसरी और चौथी, इनको तो हटा ही देना चाहिए अपनी लाइफ से, तो वरना जो है इन्हीं में लगे रहेंगे तो फिर पूरी ज़िंदगी छोटी छोटी चीज़ों में, उलझनों में, मजबूरियों में, परेशानियों में गुजरती है। लेकिन अगर इनको रिमूव करके कम से कम हमको 3 दिन चाहिए कि अपने ऊपर लगाएं, थोड़ा ऐसी जगह पे बैठें जहाँ ज़्यादा शोर ना हो, थोड़ा सा अपने आप को देखें, परखें कि माजी में मेरा क्या इंटरेस्ट रहा है, किस तरह के सब्जेक्ट, किस तरह के लोगों में मैं ज़्यादा जो है वो दिलचस्पी लेता था। फिर अगर प्रेजेंट में है तो मैं यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर किस तरह की पोस्टें, वीडियोस ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो इससे कुछ ना कुछ जो है वो यूनिक एबिलिटी का अंदाज़ा हो जाता है। जब यूनिक एबिलिटी का अंदाज़ा हो जाता है तो फिर इससे हम एक बेहतर जो है वो वैल्यू दूसरों की ज़िंदगी में ला सकते हैं। अगर हम तीसरी और चौथी कैटेगरी में काम करेंगे तो वहाँ पर कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं दे सकते, लेकिन अगर ये पहली कैटेगरी में है तो यहाँ हम ज़्यादा डिलीवर कर सकते हैं, इसलिए कि हम एक जज्बे के साथ काम करेंगे, इसलिए कि हमें सेटिस्फेक्शन मिल रही होगी। तो ये हर बंदे में कोई ना कोई यूनिक एबिलिटी, नेचुरल टैलेंट, इनर स्ट्रेंथ होती है। बात यह है कि उसको फाइंड किया जाए। आप अपने दोस्तों से हेल्प ले सकते हैं कि उनसे पूछ सकते हैं कि मेरे में कौन सी अच्छी स्ट्रेंथ है, एबिलिटी है जिसके ऊपर मुझे काम करना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, अगर चंद एक दिन लगा के पहले अपनी यूनिक एबिलिटी को हमने फाइंड कर लिया तो फिर जो है वो ज़िंदगी में उसके ऊपर काम करना आसान हो जाता है। वरना फिर उलझनों में, छोटी छोटी कामों में, मजबूरियों में पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है। फिर बात यह है कि डेली रूटीन में 3 प्रायोरिटीज़
प्रायोरिटीज़ जो हैं वो किस डायरेक्शन में, इसमें जो हमारी यूनिक एबिलिटी है जिसको हमने इस टूल के ज़रिए फाइंड कर लेना है। फिर इसमें जो है वो अचीवमेंट्स के लिए और सक्सेस के लिए पूरा एक प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में सारा कुछ स्किल सीख लेनी है, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना है, दूसरों के साथ नेटवर्किंग रिलेशनशिप बना लेना, नहीं, बल्कि एक प्रोसेस है। रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर थोड़ी थोड़ी चीज़ें करनी होती हैं और अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सिंपलीफाई करना है। बिग सक्सेस वो छोटी छोटी अचीवमेंट्स का मजमुआ होती है। फिर जो छोटी छोटी अचीवमेंट्स हैं वो डेली इम्प्रूवमेंट से आती हैं। डेली इम्प्रूवमेंट्स में वही हमारी 2-3 प्रायोरिटीज़ होती हैं जिनके ऊपर काम करें तो वक्त के साथ साथ हम आगे बढ़ सकते हैं और ज़िंदगी को सिंपलीफाई कर सकते हैं, ना कि बिला वजह पेचीदा इनको बनाना है। अब जो हमारी रूटीन है उसको सिंपलीफाई करने के लिए लाजमी नहीं है कि हम महंगे किस्म के जो हैं वो कोर्सेज़ करें या बड़ी बड़ी डायरियाँ और बुक्स लिखनी पड़ेंगी, पढ़नी पड़ेंगी, बल्कि ये जो सिंपल सा रजिस्टर है इसको मैंने नाम दिया है क्लैरिटी रजिस्टर। ये 80 पेज हैं, कॉपी जो जिनके ऊपर फ़ोटो कॉपी करवाते हैं, फिर इनको एक्सरे जो उसके साथ बाइंडिंग है। तो ये क्लैरिटी रजिस्टर है। इसके ऊपर जो भी डेली कोई जहन में नई आइडियाज़ आता है या कोई ऐसी चीज़ जो कि मेरी यूनिक एबिलिटी से या ट्रेनिंग से रिलेटेड है तो इसके ऊपर लिख लेता हूँ। फिर यह है कि इसके ऊपर डेट वाइज डेट लिखता हूँ, फिर अगर आइडिया है तो वो लिख दिया या और कोई चीज़ है वो लिख दी, फिर अगली डेट को कोई चीज़ मिली वो लिख दी। ऐसे करके डेट के साथ साथ वो चीज़ें लिखता जाता हूँ। इससे यह है कि जो ज़िंदगी है वो थोड़ा सिंपलीफाई होती जाती है और फिर जो है वो थोड़ा आसानियाँ पैदा होती जाती हैं। तो आप लोग भी ये 80-90 पेज लेकर इनको बाइंडिंग करवा के एक रजिस्टर बना सकते हैं और रोज़ाना उसके ऊपर जो भी आपकी अचीवमेंट्स हैं या जो भी क्लैरिटी है, जो भी आइडियाज़ हैं उनको लिख सकते हैं और हम लोग अपनी यूनिक एबिलिटी को फाइंड करके आगे बढ़ सकते हैं और ज़्यादा जो रिज़ल्ट हैं वो अचीव कर सकते हैं। जब कोई भी बंदा अपनी यूनिक एबिलिटी के ऊपर काम करता है, पहले वो फाइंड कर लेता है कि उसकी यूनिक एबिलिटी क्या है। जैसे मेरी ट्रेनिंग है, मैं ट्रेनिंग में आगे जाना चाहता हूँ, पूरी ज़िंदगी इसी में रहना चाहता हूँ। किसी की हो सकता है कि वो बिज़नेस करना चाहता हो, किसी की हो सकता है कि वो डॉक्टर बनना चाहता हो, किसी की हो सकता है वो एक अच्छा टीचर बनना चाहता हो, किसी की हो सकता है वो किसी स्पोर्ट्स में जाना चाहता हो। तो ये तो फाइंड करना पड़ेगा कि मेरी यूनिक एबिलिटी कौन सी है, फिर उसके अकॉर्डिंगली हमने आगे बढ़ना है और फिर उसी